Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the sonnet of Shakespeare, sonnet number 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Actually in the previous videos I told about the sonnet and its history. You can check the comment box below for the complete video. It was published in 1609. आपको पता ही होगा Shakespeare wrote 154 sonnets and 126 were addressed to a youth, and 1 to 17 they are called procreative sonnets. They are addressed to a youth. Particularly he is a young aristocrat जिसके साथ शेक्सपियर की हो सकता है दोस्ती हो या he idealized that person. Anyway, these sonnets talk about the platonic love, what we can say, love of friendship, love of comradeship, and how he adores his beauty, his truthfulness, his honesty in these lines. The common theme is art and immortality. Through art, he wants to immortalize the love for his friend. एक आर्ट ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप किसी के भी अफेक्शन को, किसी के भी सेंटिमेंट्स को इमोर्टलाइज कर सकते हो. जो आप पोम में देखोगे, so he has given some comparisons, some similes, but all these similes, all these images have a definite time. With the passage of time, they tend to come to nothing. But the praise or the appreciation or the affectionate description he has given to his friend in these lines, ये immortal है, because they have been recorded in the form of poem. एक सोनेट की फॉर्म में, तो सोनेट जब तक रहेगा, जब तक ये पोम रहेगी, तब तक उसके दोस्त का जो है वो नाम और दोस्त के लिए उसका जो अफेक्शन है, वो दोस्त की जो ब्यूटी को आइडियलाइज किया हुआ है, वो दैट ऑल विल रिमेन फॉर द इटर्निटी. सो द थीम इज आर्ट एंड इट्स इमॉर्टल नेचर एज contrary to all the temporary or all the temporal things. जितनी भी temporal things हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, उनका एक definite time होता है. But art, when it creates something or when we create something in the form of art, it remains forever and forever. अगर अब बात आती है सोनेट की, इस सोनेट की फॉर्म की, सो शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स हैं उनकी एक यूजुअल फॉर्मेट रहती है, यूजुअल फॉर्म रहती है. दे आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेन्स एंड ए कपलेट इन आयम्बिक पेंटामिक. तो ये इसके बारे में डिटेल आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगी जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वीडियोज़. सो इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. शॉर्ट सिलेबल फॉलोड बाय अ लॉन्ग syllable. जो short long short long short long short long, line of 10 syllables with a pattern of short long short long short long short long, unstressed stressed unstressed stressed. ये फॉर्मेट इसकी है. राइमिंग स्कीम के बारे में बात करोगे तो वो कॉमन है, ए बी सी डी ई एफ एंड फाइनल कपलेट जी. द सॉनेट्स आर कॉमनली एट्रीब्यूटेड to some WH, whether it is Henry Wriothesley or some other person, and attributed by TT. TT stands for Thomas Thorpe, who compiled these sonnets and published them in 1609. पोम की बात अगर करते हैं तो shall I compare thee? Who is thee? Thee is an unknown friend or comrade or some youth, aristocrat youth. He is a young aristocrat to whom all 126 sonnets have been dedicated. So shall I compare thee to a summer's day? Summer day in Western countries, the time of summer is one of the most wholesome period. Otherwise, throughout the year there remains frost and snow and cold winter. But the time of summer is the time of romance, the time of pleasure, the time of happiness. So if he wants to compare his friend to that particular joyful time, so would it be sufficient? अपने दोस्त की जो अफेक्शन है उसको समर डे से कंपेयर करना क्या सफिशिएंट होगा? अब क्यों नहीं होगा? जब आप इमेजेस की बात करते हो, when we want to create some images, so we want to impress some idea. अब यहाँ पे एक तरफ तो डाइकोटमी देखिए, एक तरफ तो यूथ और द ब्यूटी और द प्लेजर और द अफेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंड यूथ, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू समर्स डे. सो समर डे इज अ टेम्परेरी पीरियड. समर डे रिमेन्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. समर डे रिफर्स टू एंटायर समर सीजन. तो समर सीजन
वर्सेस हिज यूथफुल अफेक्शन और हिज यूथफुल ब्यूटी। समर डे जिसको कि बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाता है पोम्स में, जॉन कीट्स सेड दैट नथिंग चीयर्स माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे। तो एक फाइन डे मतलब पूरा मूड ही चेंज कर देता है, पूरे स्पिरिट्स को हाई कर देता है जब इट्स अ सनी डे। व्हेन इट्स अ सनी डे इन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, सो इट इज़ अ प्लेजरेबल डे। तो यहाँ पे उस प्लेजरेबल सीजन से कंपेयर करना क्या सफिशिएंट होगा? बिकॉज प्लेजरेबल सीजन कम्स एंड गोज, बट द यूथफुल ब्यूटी एंड द अफेक्शन दैट ही हैज़ फॉर दैट पर्सन, ये ट्रांसेटरी नहीं है, ये एक फ्लीटिंग नहीं है, फ्लीटिंग जस्ट लाइक द समर डे। तो क्या करना चाहिए मुझे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? परहैप्स नो। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? So summer day refers to wholesome time, time that everybody wants to have, time that everybody pines for। इस तरह का फेवरेबल टाइम, इस तरह का होलसम टाइम हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में आए। तो इस टाइम से अगर कंपेयर किया जाए सो वुड इट बी सफिशिएंट? बिकॉज द टाइम कम्स एंड गोज, वो तो आता है चला जाता है, तो क्या करना चाहिए उसको कंपेयर? दाउ आर्ट, ये सब क्या है? आर्केइक वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड आर्केइक वर्ड्स। इनका पोएटिक नेचर होता है और दे आर कॉमनली यूज्ड इन पोएट्री। अब मॉडर्न पोएट्री में भी समटाइम्स यू कैन फाइंड द यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ एवर इन द पोएट्री ऑफ 16th-17th सेंचुरी और प्रायर टू दैट यू कैन फाइंड देम कॉमनली। सो ये एक आर्केइक यूज है। तो दी रिफर्स टू यू, आर्ट रिफर्स टू आर, दाउ रिफर्स टू यू, you as a subject, they as you as object। thou art more यानी कि you are more lovely and more temperate। temperate means mild। mild से क्या कैनोटेशन है यहाँ पे? जैसे समर डे अगर आप पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेते हो तो समर डे हमारे यहाँ तो पूरा झुलसा देता है, उनके यहाँ हो सकता है होलसम है, लेकिन एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इट मे बी फियर्स। हो सकता है कि दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा फियर्स रहता हो। तो अगर मैं तुम्हें कंपेयर करता हूँ समर डे से, समर डे अगर दोपहर के टाइम में दिखते हैं तो इट इज़ इंटेंस, और जो शाम के या सुबह के टाइम में वो इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड रहती है, मतलब लो रहती है। लेकिन एज फार एज योर इंटेंसिटी, योर अफेक्शन इज कंसर्न, सो यू आर माइल्ड, यू आर टेम्परेट, you are not too high, too hot or too cold, you remain in between। your nature, your ambience is all wholesome, more wholesome than the summer day if we compare you to summer day। so you are more temperate, you are more milder। rough winds do shake the darling buds of May। darling buds of May means जो स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स जो होती है। फ्लावरिंग बर्ड्स अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, दे हैव ऑल ब्यूटी। एंड इफ द यूथफुल एरिस्टोक्रेट और एरिस्टोक्रेट यूथ और हिज फ्रेंड इज कंपेयर्ड टू दोज फ्लावरिंग बर्ड्स, सो ये भी क्या सफिशिएंट होगा? परहैप्स नॉट, ये भी सफिशिएंट शायद ही हो, क्योंकि रफ विंड्स डू शेक मीन्स शेक मीन्स डिस्ट्रॉय भी कह सकते हो यहाँ पे, और विदर द ब्यूटी। रफ विंड्स, व्हेन द रफ विंड्स ब्लो दे विदर द फ्लावरिंग ब्यूटी। जब रफ विंड्स चलते हैं तो फ्लावर की जितनी भी खूबसूरती होती है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। इफ़ आई कंपेयर यू टू अ फ्लावरिंग बट इट इज़ नॉट होलसम टू कंपेयर। क्यों? क्योंकि उनको तो वो रफ विंड्स जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं, बट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी रफ विंड्स। रफ विंड्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कौन कौन सी होती हैं? जो रफ टाइम, द टाइम दैट अफेक्ट्स यू, द टाइम दैट डिस्ट्रॉयज यू, द टाइम दैट ग्रीव्स यू। सो टाइम अच्छों को क्या करता है कि अफेक्ट कर देता है। टाइम के आगे हर कोई हेल्पलेस फील करता है, बट यू डोंट सीम टू हैव बीन और टू बी डिस्टर्ब्ड और अफेक्टेड बाय द वैगरीज ऑफ टाइम। द वैगरीज ऑफ टाइम, यहाँ पर रफ विंड्स किस तरीके से आप कह सकते हो? वैगरीज ऑफ टाइम। वैगरीज मीन्स द इल इफेक्ट्स ऑफ टाइम। इल इफेक्ट्स ऑफ टाइम, दे अफेक्ट एवरीथिंग, everyone, everything, be it a human being or an object of nature। just like rough winds do shake the darling buds of May। the flowers, the delicate flowers of spring season are closely affected by the rough winds। but as far as the rough winds in the life of human being, particularly in your life,
दे डोंट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उससे भी कंपेयर करना क्या सफिशिएंट होगा? शायद नहीं। एंड समर्स लीज, लीज भी यहाँ पे किसके लिए? ड्यूरेशन। हैथ रिफर्स टू हैज, इट इज ऑल्सो आर्केइक वर्ड। हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, शॉर्ट अ डेट, डेट मीन्स टेन्योर। अब सब जो यहाँ से स्टार्ट किया था उसी को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि इफ आई कंपेयर यू टू अ समर डे बट आई कैन एक्सेप्ट, आई शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट समर हैज़ अ शॉर्ट टेन्योर। जो लीज पे कोई चीज़ हम लेते हैं तो लीज का जो टाइम है, वो जो टेन्योर है, वो टेनेसी जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड की है। अब जब शॉर्ट पीरियड की है तो योर प्रेज, योर एप्रिसिएशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू समथिंग दैट हैज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। योर एप्रिसिएशन, योर प्रेज, योर अफेक्शन should be compared to something that is infinite in nature, that has infinite time। तेरी जो ब्यूटी है, वो अफेक्शन है, वो किससे कंपेयर किया जाना चाहिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट? उस चीज से जो कि इमॉर्टल है, ना कि ऐसी कोई नेचुरल फिनोमिनल चीज जिसका कि छोटा सा ही एक टाइम ड्यूरेशन है। जैसे कि समर डे, समर्स लीज, जो समर का जो टाइम है, टेन्योर है, ड्यूरेशन है, वो तो क्या है? बहुत कम टाइम के लिए है। सो हाउ कम कैन आई कंपेयर यू टू दैट पर्टिकुलर समर डे इवन इफ इट इज होलसम? कितना भी होलसम क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत, कितना भी खुशनुमा माहौल क्यों ना हो समर के टाइम में इन यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन वो फिर भी उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। इट हैज़ इट्स ओन टाइम एक्सपायरी। सो एनीथिंग दैट हैज़ इट्स एक्सपायरी, उससे कंपेयर तेरी ब्यूटी को, तेरी एप्रिसिएशन को करना क्या जस्टिफिएबल रहेगा? परहैप्स नो। हियर समटाइम टू व्हाट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। Eye of heaven refers to sun. The phenomena of sun is also not the same forever and always. कभी तो वो क्या है, कभी डिम हो जाता है, कभी अच्छे से शाइन करने लगता है। Even sunlight is overshadowed by the clouds. Sometimes the cloud overshadow the sunlight, obstruct the sunlight. So when the sun shines, it is not always that it will keep shining. उसको भी obliterate करने के लिए clouds होते हैं, fog होता है, तो वहाँ से उसका भी एक अपनी particular time है और it is exposed to, it is prone to the vagaries of nature herself. Even a tiny cloud can outshine the sunlight. A tiny cloud can overshadow the sunlight. तो वो उसको देखते हैं to what the eye of heaven shines. और दूसरी तरफ पहली लाइन से इसको कंपेयर करें, सो इट इज समटाइम्स इट शाइन्स टू ब्राइटली। अगर आपसे कंपेयर करें तो क्या है कि योर नेचर इज टेम्परेट, माइल्ड, यू डोंट शाइन टू ब्राइटली एंड टू लो। एंड ऑफन हिज गोल्ड कम्प्लेक्सन, गोल्ड कम्प्लेक्सन जो आप पूरा सूरज के चारों तरफ जो एक ऑरा है और जो एक एम्बियंस है, जिसको कि आप हैलो, जिसको कि कहते हैं हैलो, सो वो शाइनिंग हैलो, हैलो ऑफ गोल्डन रेज, वो भी क्या होता है? इट इज डिम्ड, इट इज डिम्ड मतलब ओवरशैडोड, ओवरशैडोड बाय क्लाउड कह लीजिए, ओवरशैडोड बाय cloud. Sometimes it shines, other times it doesn't. It is exposed to the vagaries of nature herself. So ऐसी एक चीज से जो कि किसी भी चीज से अफेक्ट हो सकती है, आपको कंपेयर करना क्या जस्टिफिएबल रहेगा? For every fair, first fair refers to beautiful object or beautiful being or even beauty. It refers to beauty itself. From fair, this fair refers to person. Means with the passage of time, the beauty of any beautiful object, the beauty of any beautiful person declines. This is a common fact. Every beautiful thing has its own expiry. It perishes, it declines with the passage of time. So every fair from fair sometime declines, sometime or other. मीन्स कभी ना कभी उसकी एक्सपायरी होगी, इट विल डिक्लाइन, इट विल डिमिनिश, इट विल पेरिश बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग, बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग, या तो इट कम्स इन अ नेचुरल कोर्स। नेचुरल कोर्स का मतलब क्या है? द वैगरीज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जिसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है उस लिहाज से। और दूसरा क्या है? कई बार चांस, फेट, डेस्टिनी, उसकी वजह से भी हो सकता है।
चांस रिफर्स टू, अगर कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट की अगर ब्यूटी की बात करते हैं, जैसे फ्लावर की ब्यूटी की बात करते हैं, सो एक 4-5 दिन का टाइम हो सकता है उसकी खूबसूरती के लिए, और आफ्टर दैट 4-5 days इट्स ब्यूटी डिक्लाइंस इटसेल्फ। दिस इज अ नेचुरल कोर्स। दूसरा क्या है कि इफ यू पोर सम केमिकल ऑन दैट फ्लावर, सो इट्स ब्यूटी ऑल्सो डिक्लाइंस। उसकी ब्यूटी वैसे भी आप खराब कर सकते हो, या फिर आपने उसको जो प्रॉपर ऑक्सीजन या प्रॉपर सनलाइट से हटा करके एक ऐसे अंधेरे कमरे में रख दिया, सो इट्स ब्यूटी ऑल्सो डिमिनिशेस। तो वो क्या हुआ, चांस, वो चांस और वो आउटवर्ड फैक्टर्स हैं जो कि उसकी ब्यूटी को डिमिनिश होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट इफ नथिंग हैपन्स, इट हैज़ इट्स ओन एक्सपायरी, इट हैज़ इट्स ओन एक्सपायरी ऑल्सो, जो कि बिना किसी फैक्टर के, आउटसाइड फैक्टर के अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाने हैं। सो बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग, ये नेचुरल कोर्स। अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड मतलब स्ट्रिप्ड, इट्स ब्यूटी इज स्ट्रिप्ड, इट्स ब्यूटी डाइज। दिस इज द नेचुरल फिनोमिनन। Every object which is beautiful, which is magnificent, which we aspire for, which we pine for, has its particular time limit, has its particular expiry. After that expiry, it expires. After that particular timing, it expires. Or if it does not happen even prior, it is also prone to, it is also exposed to outward factors also. जैसे कि हमारी एक लाइफ होती है, पर्टिकुलर लाइफ होती है, उससे पहले भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए एंड देन वी आर नो मोर। सो वो चांस, फेट और होनी, वो भी एक आउट ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, और एक नेचुरल कोर्स जो कि हमारी एक मॉर्टल नेचर है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू आवर ओन क्लोज समटाइम्स। सो ये ऐसी चीज़ों से क्या आपकी ब्यूटी को, आपके अफेक्शन को, और आपके लिए जो मेरा रेफरेंस है, मेरा जो रिस्पेक्ट है, उसको ऐसी किसी चीज़ से, एक नेचुरल फिनोमिनन से कंपेयर करना कि जस्टिफिएबल रहेगा। शैल आई कंपेयर? इफ़ आई हैव टू रिकॉर्ड योर प्रेज, योर एप्रिसिएशन, सो आई हैव टू गिव सम इमेजेस, बट these images are sufficient. The question is this, whether all these images which are used for the description of any beauty, आपने बहुत सारी poems में देखा होगा कि the beauty of the beloved, beauty of some object, beauty of some particular sight, some scene, they are enforced by some similes, इमेजेस, इमेजरी दी जाती है कि ये खूबसूरती उतनी खूबसूरत है, ये चीज़ उतनी खूबसूरत है, ये चीज़ इतनी वंडरफुल है, उतनी वंडरफुल है। तो वो इमेजेस जो हैं वो उस ब्यूटी को हाइटेंड करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे वही वो चीज़ जो कि उस ब्यूटी को एनहांस करने के लिए यूज़ की जाती है, वो इमेजेस, उन्हीं इमेजेस से यहाँ पे एक सफिशिएंसी नहीं होती, वो इमेजेस सफिशिएंट नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो ये कहना चाह रहा है और जो करना चाह रहा है वो एक इमॉर्टल चीज़ है। तो इमॉर्टल जिसका नेचर हो, वो चीज़ किसी फिनोमिनल या मॉर्टल से कैसे कंपेयर की जा सकती है। सो बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम। बट दाई मीन्स दिस यूथ, अननेम्ड यूथ, इटर्नल समर। एक समर स्टार्टिंग में यूज की थी, दैट समर वॉज ट्रांसिटरी, दैट समर हैड इट्स पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एक्सपायरी। बट योर समर, समर मीन्स यहाँ पे वही ब्यूटी कह लीजिए, वही होलसम नेचर कह लीजिए। जैसे उस अगर सारे सीजन्स में बात करते हैं, पूरे ईयर को एक एंटिटी मानते हैं, तो ईयर का सबसे होलसम टाइम कब आता है? समर में। यहाँ पर वो क्या है कि पूरा लाइफ और एग्जिस्टेंस ही होलसम है, और वो क्या है? इटर्नल है, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग समर शैल नॉट फेड। अब चीज़ आती है कि एक रियलिटी क्या है, वाई दे आर नॉट सफिशिएंट, वाई ऑल दीज इमेजेस दैट हैव बीन ड्रॉन बिफोर हैंड आर नॉट सफिशिएंट फॉर द कंपैरिजन ऑफ योर ब्यूटी, ऑफ योर लव, फॉर योर अफेक्शन। क्यों? क्योंकि योर समर इज इटर्नल, इट विल नेवर फेड, इट विल नेवर डाई, नॉट लूज possessions of that fair thou owest. Fair means this beauty, and your beauty, the beauty that you owest refers to possess. The beauty that you have, the beauty that you possess, जो beauty है तुम्हारी, वो कभी भी destroy, perish या फिर fade नहीं होगी। Not lose the possessions of that fair
that fairness, that beauty, that affection, that love, that tenderness, that modesty, means all these human attributes, वो जितने भी हैं, they will remain as such. They are eternal, they are immortal, they will not fade. Nor shall death break thou wonders. Fade मतलब dies, oest मतलब possess, fair means beauty. Possessions of that fair thou oest. So जो possessions हैं, you will not be able to lose them because you are mortal. The praise that I am going to render to you should be immortal, is immortal, and will not be likened to, compared to, shall not be compared to, likened to anything which has short period. जिसका कि एक ट्रांसिटरी नेचर है, उससे कैसे कंपेयर हम कर सकते हैं. एंड एज फार एज डेथ इज कंसर्न, डेथ तो हर किसी को आनी. डेथ इज अ बिटर रियलिटी, इनएविटेबल फैक्ट. एवरीवन हैज़ टू डाई one day or other, but as far as his beauty is concerned, so or his existence is concerned, death का वहाँ पर कोई intervention, कोई obstruction, कोई interference नहीं होगा. Even death cannot brag. Death यहाँ पे किसको एक personify किया हुआ है, personification. Death has been regarded as an entity जो कि boast, that brag, that be not proud. जॉन डन कह रहे हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड. इट मीन्स डेथ फील्स प्राउड ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, प्राउड ऑफ लिमिटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन. सो डेथ इज प्राउड. लेकिन जॉन डन कह रहे हैं डेथ शुड नॉट बी प्राउड. यहां पर भी आप सिमिलर आइडिया देख सकते हो. सो डेथ नॉट शैल डेथ ब्रैग, feel proud to have possessed that life. Death किस चीज को feel proud करेगी? That thou wanders मतलब walks in his shade. His refers to death's shade, मतलब you come in the dominance of death. Death will feel proud that you have come in the dominance of its power. Death has that power that everybody has to accept. But यहाँ पर तो death will not be able to be boastful or be feel proud to have you, because you are beyond the capability or the power of death. You are beyond the clutches of death. When in eternal lines to time thou growest. Eternal lines. What are these eternal lines? The lines of these poem. जिन लाइन्स में मैंने ये खूबसूरती और ये जो ब्यूटी है, द ब्यूटी दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स, दीज लाइन्स यू लिव नॉट इन द वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड, यू लिव इन दीज लाइन्स. एक इथेरियल और एक मॉर्टल वर्ल्ड थोड़ी है तुम्हारे रहने के लिए. Your existence lies in these lines, and as long as the world is there, these lines are there, your beauty, your affection, your love will remain so. So when in eternal lines to time thou growest, so when you grow with the time, you will not be able to have your expiry. You will have your life tenancy in these lines. So as long as these lines remain, your existence remains, your praise remains, your beauty remains, the appreciation that I am rendering to you will remain. तो तब तक है वो. So long as man can see. और इन 2 लाइन्स में उस पूरे को इन्होंने समराइज कर दिया. लास्ट की कपलेट का एक ऑब्जेक्टिव ये है शेक्सपियर के यहाँ कि वो पूरी जो पोम है, पूरी पोम का एक समरी, एक कॉन्क्लूजन है, एक क्विंटेसेंस है, एक जिस्ट है. एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आई कैन सी, दिस इज द इमॉर्टल फिनोमिनन. जब तक ह्यूमन बीइंग रिमेन्स और लाइफ रिमेन्स, life and death, they are inseparable part, but death, if death is there, life is also there. So as long as there is life, means as long as man can breathe, as long as the sight, the things are visible, man has a life, and then he is able to see the world, the phenomenal reality. Means as long as the life is and as long as the phenomenal reality is. So दोनों ही जब तक है, so long lives this remains the poem or appreciation in
the form of poem. This sonnet, because your appreciation, your praise is not in some physical form. Your praise, your appreciation is in the form of this art. Art is immortal. Art remains forever. So ये this यहाँ पे art, this is art also. So long lives this, and this gives life to thee. So long lives this art, so this art will give life to you. जिस तरीके से आर्ट सस्टेन होगी, अब आर्ट किससे सस्टेन होती है? एप्रिसिएशन से. ऐसे ही जो चीज उसको सस्टेन कर रही है, उसी चीज को आर्ट पे बैक करती है. इफ यू राइट सम लाइन्स इन द प्रेज ऑफ समथिंग, सो दैट इज आर्ट, एंड थ्रू दिस आर्ट द प्रेज ऑफ दैट पर्सन और द थिंग इज इमोर्टलाइज. आर्ट किस चीज का? आर्ट का एग्जिस्टेंस क्या है? इफ आई से समथिंग फॉर यू, if I recite some lines or if I compose some lines in your praise, so that praise is in the form of art. अगर चाहे वो ड्राइंग कर दूँ, या फिर मैं एक पेंटिंग बना दूँ, या फिर मैं आपकी तारीफ में कुछ लाइंस लिख दूँ, सो द लाइंस, जो पेंटिंग और स्कल्पचर और समथिंग एनीथिंग, वो क्या है? आर्ट के फॉर्म में. तो उस प्रेज ने, उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी ने आर्ट को जनरेट किया, जन्म दिया, और उस आर्ट ने क्या किया? उसकी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा, उसके एग्जिस्टेंस को एक हमेशा एक लाइफ दी, एक सस्टेनेबिलिटी दी. वही बात यहाँ पर है कि सो लॉन्ग एज दिस आर्ट रिमेन्स. अब आर्ट का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय योर प्रेज. और बाद में आर्ट क्या करेगी? आर्ट विल सस्टेन योर एग्जिस्टेंस फॉर एवर एंड फॉर एवर, बिकॉज द नेचर ऑफ आर्ट इज इमॉर्टल. आर्ट नेवर डाइज. आर्ट तो हमेशा ऐसे रहती है. सो इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट वर्सेस फिनोमिनल रियलिटी. So you don't come in the influence of any mortal things, and as such your praise, your appreciation, your beauty, your affection, your love cannot be compared with something that has a limited time tendency, that limited beauty. एक ऐसी किसी भी चीज़ से तुम्हारी कंपेयर नहीं की जा सकती जिसका कि खुद का वजूद बहुत कम टाइम के लिए हो. अगर इन पोम्स को आप देखते हो तो ये एक आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा. 16th सेंचुरी में जिस तरह के सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे गए, जो ट्रेडिशन थी, वो ट्रेडिशन में क्या था? द लवर इज लव लॉर्न, परहैप्स ही इज पाइनिंग फॉर सम लेडी एंड द लेडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक, सो ही इज राइटिंग द सॉन्ग्स फॉर दैट अनरिक्वाइटेड लव. या फिर द लव लॉर्न लवर इज सिंगिंग इन प्रेज ऑफ द बिलवेड. तो वो सेंटर जो होता था, लव थीम होती थी. यहाँ पर भी लव थीम है, बट दैट लव इज नॉट फॉर द बिलवेड, दैट लव इज फॉर द फ्रेंड. प्लेटोनिक लव, जिसको कि आप प्लेटोनिक लव कह सकते हो, और वो एक दोस्त के लिए है, एक फ्रेंड के लिए, एक कॉमरेड के लिए है. और उस लव को किस तरीके से एक आर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि सो लव हैज़ बीन इन दैट सेंस इमॉर्टलाइज्ड. वो जो एक ब्यूटी बिलवेड की ब्यूटी होती, तो वो बिलवेड की ब्यूटी को किसी और ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने का मतलब क्या है? बिलवेड इज मॉर्टल एंड देन दोज थिंग्स आर ऑल्सो मॉर्टल. तो वहाँ पे वो चल जाता, लेकिन यहाँ पे वो एक डिफरेंट चीज़ है. तो शेक्सपियर हैज़ गॉन अगेंस्ट द कॉमन कन्वेंशंस ऑफ सॉन्ग्स और सोनेट्स of his time also. He has given something new. उसमें एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी चेंज इन्होंने ला दिया. फॉर्म में तो लाए ही, हालांकि फॉर्म इन्होंने किससे बोरो की थी? अर्ल ऑफ सरे, जो हेनरी होवार्ड, उन्होंने चेंज किया था इस फॉर्म में, जो थॉमस वाइट की फॉर्म थे, पेट्रार्कन फॉर्म. लेकिन जो पॉपुलराइज किया वो शेक्सपियर ने ही किया. तो फॉर्म के साथ साथ जो थीम में जो चेंज किया वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन ही है. और जिस तरीके से जो मैट्रिकल कंपोजिशन है, जो मैट्रिकल एक सॉलिडारिटी है जो इन्होंने लाइंस को दी है, दैट इज मैग्निफिसेंट इन इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई वी नो सोनेट बाय द शेक्सपियर्स नेम, नॉट बाय अर्ल ऑफ हेनरी होवार्ड और अर्ल ऑफ सरे. उन्होंने बनाया, उन्होंने उस फॉर्म को एक पहचान दी, बट वी डोंट कंसीडर the popularity of this sonnet to Henry Howard. We attribute the popularity of this sonnet form to Shakespeare. So that is all for now. If you have some doubts, you can ask the questions.
you can give your valuable feedback also. And for more explanations, stay tuned, keep learning and stay motivated. And if you have not subscribed to the channel, so make it right now so that you don't miss the videos. So like and share. Thank you.